Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Yes, beta. Hello. Yes, join fast. Good afternoon, sir. Yes, beta. Good afternoons. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर आप हनी कॉमन तो नहीं पढ़ाएंगे सर? पढ़ाएंगे just after this complete this unit. यानी हो सकता है आज पूरा हो जाएगा. तो tomorrow I will start with ठीक है सर. honeycomb, right? Hello. यस सर. Yes. You are hearing me? यस सर. बेटा यहाँ पे आपका पिक्चर कुछ नहीं आ रहा. What is reasons? चलिए see here. Yes, indefinite pronoun बेटा, right? See here. Today I am late, near about 10 or 15 or 20 minutes because I was taking the class 9th. So this is reason I am late here. So next beta, listen here. Indefinite pronoun. See here. Indefinite. INDEFINITE. Indefinite pronoun. Pronoun. Right? Listen here. What is indefinite pronoun? Indefinite pronoun is that pronoun by which we never find accurate number. यानी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता. तो this type the pronouns is under indefinite pronoun. You know already indefinite means अनिश्चित, not fixed, right? Somebody, anybody, someone, anyone, no one, like this. So this type the word under the indefinite pronoun. You can see here also definition that, listen, that pronoun who not give accurate number, right? So this type pronoun is called indefinite pronoun, right? Are you hearing me, beta? यस सर. Yes, listen here. Yes, That sir. pronoun who not give accurate number, यानी निश्चित कोई संख्या नहीं बता. Yes, sir. Yes, तो this type pronoun is called the indefinite pronoun. जैसे देख सकते हैं as, इसमें कौन से वर्ड आ सकते हैं? जैसे दिया गया है somebody, right? दिया गया है nobody, right? ध्यान दीजिएगा. Nobody, someone, no one, right? Anyone, right? Anything, something. So these type pronoun are called indefinite pronoun. Please show your face also, right? Shruti Yadav and others, see here. If you are seeing, please see here. Indefinite pronoun means that pronoun who does not give the accurate number.
एक्यूरेट संख्या का पता नहीं चलेगा, तो दिस टाइप प्रोनाउन इज अंडर द इंडेफिनिट प्रोनाउन। हियर आई हैव गिवन सम वर्ड्स, somebody, nobody, someone, no one, something, anything, आपका anyone दिया गया है, तो दिस टाइप प्रोनाउन इज अंडर द व्हाट इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों ऐसा कहेंगे? रीजन यह है कि दीज आर नॉट गिविंग द एक्यूरेट और फिक्स टाइम या समय या नंबर किसी चीज का, तो दिस टाइप द वर्ड इज अंडर द इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे देखिएगा, देयर आर सम वर्ड्स, इसमें देख सकते हैं सम वर्ड्स आर एंडिंग विद अ थिंग, समथिंग, एनीथिंग, लाइक दिस। तो जहां पे थिंग दिया गया है, दिस टाइप द प्रोनाउन यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। देखिएगा आपके बुक्स में दिया गया है, यू कैन सी हियर, जैसे दिया गया आपका समथिंग दिया गया है, ये आपको दिया गया है सम, THING, समथिंग, प्लीज सी, समथिंग दिया गया है आपका, एनीथिंग, एनीथिंग, और उसके बाद आपका और दिया गया है एवरीथिंग, EVERYTHING, राइट? बेटा सी, स्टूडेंट्स आई होप दैट यू ऑल विल बी सीइंग हियर। आपको दिखाई दे रहा है क्या? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब दिखाई दे रहा है क्या बेटा? Yes, sir. सर बोलो बेटा। यस सर। तो देखिए, जिसमें थिंग दिया गया THING, ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे रीजन है। जिसमें थिंग दिया गया है, क्या? ये वाले वर्ड जो है केवल नॉन, NON, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट व्हिच प्रोनाउन इज एंडिंग विथ थिंग, THING, राइट? तो these type of pronouns are used only for non-living things, and which pronoun not ending with the क्या चीज थिंग, जिससे जो आपके थिंग से एंड नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे आपको दिया गया somebody, nobody, someone, no one, तो इसमें लास्ट में आप देख रहे हैं here is not ending, this word are not ending with the things, तो this type the words are used only for person, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होगा। आर यू हियरिंग मी? Yes, बेटा sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि जिन जो है प्रोनाउन के अंत में ING दिया होगा, उनको आपको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करना है, और जिसमें ING नहीं दिया है, थिंग नहीं दिया गया है, वे केवल पर्सन होगा, ये आपको समझना है। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्सरसाइज। चलिए इसका डेफिनेशन हटाते हैं। सी हियर, see here the some examples from your exercise। देखिए पहला दिया गया है, fill in the blank choosing the appropriate indefinite pronoun। आपका एक्सरसाइज आई दे दिया गया है, एक्सरसाइज नंबर आई, राइट? सी हियर, fill the blanks, fill in the blanks choosing the appropriate, choosing the appropriate indefinite pronoun, indefinite pronoun from pronouns from those given in the brackets, those given in the brackets, right?
हर सेंटेंस के आगे आपको जो है एक दिया गया है, क्या जी ब्रैकेट में देयर आर टू ऑप्शन, यू हैव सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। सी हियर, द rumor obviously obviously did not arise on its own। स्पेस दिया गया, यू कैन सी हियर स्पेस somebody देखिए स्पेस दिया हमने, आपको फिल कर दिया, इसको लिखना नहीं है, इसमें आपको स्पेस दिया गया है। मस्ट हैव स्प्रेड, मस्ट हैव स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड, इंटेंसली बोल सकते हैं, TIONALLY फुल स्टॉप somebody, और जस्ट आफ्टर दिया गया आपको anybody, राइट। इसको आपको सिलेक्ट करना है। सी हियर, आर यू हियरिंग मी बेटा क्लास? Yes, sir. Your sound is coming very slow. Yes, Everybody sir. speak now. The rumor obviously did not arise on its own. Must have spread intensely somebody or anybody. According to you, what is the correct option of given two options, somebody and क्या चीज? Anybody. सबसे पहले first allow you should try to find out the static meaning of the sentence. The rumor अफवाह है, obviously वास्तव में did not arise on its own, अपने आप जो है किसी भी प्रकार का अफवाह रेज नहीं हो सकता है, नहीं फैल सकता है। Must have spread intensely, अवश्य किसी ने क्या किया होगा, इंटेंसली का मतलब उसका इरादा जरूर होगा उसको क्या करने का, ऐसा अफवाह फैलाने का, तो किसी ना किसी ने ऐसा किया होगा। इट मींस श्योर वी विल यूज हियर somebody, राइट। क्या हो जाएगा, somebody का यहां पर आप इस्तेमाल कर देंगे, BODY somebody, यहां पर यू कैन यूज हियर, किसी ना किसी ने, राइट। कोई ना कोई ऐसा क्या होगा, जरूर श्योर यूज किया होगा, तो लाइक दिस यू कैन यूज somebody might have spread intensely, किसी न किसी ने ऐसा फील किया होगा। तो इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। और देखिएगा नेक्स्ट, यस नेक्स्ट नंबर आपको दिया है सेकेंड में, इज स्पेस interested in going to the cafe, interested in going to the yes cafe, and here given any one and someone, yes here interested in going to the cafe, यानी इसमें देखना है कि क्या कोई, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या कोई इंटरेस्टेड है, इच्छुक है क्या करने के लिए, इन गोइंग टू द कैफे, तो इट मींस एनीवन, कोई भी, तो यू कैन यूज हियर एनीवन, राइट, यू कैन फील हियर एनीवन हियर, तो लाइक दिस यू कैन सेलेक्ट द वर्ड एनीवन। जनरली आप देखते हैं हिंदी में पूछते हैं कि क्या कोई स्कूल चलेगा,
क्या कोई मार्केट जाएगा? लाइक दिस यू कैन सेलेक्ट द वर्ड एनी वन. नेक्स्ट नंबर, अगली इसमें एक और रूल्स है. If your sentence is affirmative, in that case use always what? Someone. Affirmative. But your sentence is what? Interrogative. This is a fix that always use anyone. ये भी एक रूल है. और जनरली आप हिंदी में पूछते हैं क्या कोई चलेगा, क्या कोई क्लास लेने चलेगा? Like this also use anyone. क्या कोई, anyone. Someone means भाई कोई भी, और anyone और कोई. तो in this way use the each, anyone and others. अगला देखिएगा नेक्स्ट नंबर. There were 4 windows. आपका थर्ड नंबर है. There were 4 windows in the room, but right space was open, full stop, and just आपको दिया गया है none or any. बेटा see here, there were 4 windows in the room. 4 क्या है? विंडोज है. किस में? रूम में. 4 खिड़कियां हैं, विंडोज है. बट लेकिन क्या है? वाज ओपन. नन मीन्स कोई नहीं खुला था. बट नन वाज ओपन, कोई खुली नहीं थी. नन मीन्स कोई नहीं. तो इट मीन्स योर सटीक प्रोनाउन इज नन. Before filling the blanks, you should try to find out the certain meaning of the sentence. Then you will eligible to find the correct option. Otherwise, wrong. Next. फोर्थ नंबर आपका आएगा सी here. Space of the buyers, B-U-Y-E-R-S, buyers were cheated by the builder, B-U-I-L-D-E-R, builder. और आपको ब्रैकेट में दिया गया है many, M-A-N-Y, many या no one. राइट. सी हियर बेटा, ये दिया गया है कि ऑफ द बायर्स वर चीटेड बाय द बिल्डर्स. यानी मेनी बहुत से चीटेड किए गए थे, या नन मीन्स कोई नहीं किया गया था. यू कैन सेलेक्ट हियर द सटीक ऑप्शन. यानी इसमें से बहुत से बिल्डर के द्वारा धोखा दिया गया था बहुत लोगों को, या नन मीन्स कोई नहीं. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द सटीक आंसर? जरा आप बताएं व्हाट इज सटीक. Many. यस, मेनी का मतलब ये हो जाए कि बहुत से जो है बिल्डर्स के द्वारा, बहुत से कौन बाय, जो खरीदार हैं, जो खरीदने वाले लोग थे, धोखा दे दिए गए. और अगर नन का इस्तेमाल करते हैं, इफ यू नन, दैट केस कोई नहीं किया गया था, किसी को धोखा नहीं दिया गया था. तो यू कैन आल्सो यूज हियर मैनी, अधिकांश. राइट, मैनी. इन दिस वे यू कैन फील योरसेल्फ अदर्स. एक और देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आप लोग खुद देखिएगा, अदरवाइज आई विल सेंड द आंसर. नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर बेटा. 5 आपको दिया गया है जस्ट स्पेस आर बार्न ग्रेट, राइट. एंड ऑप्शन इज गिवन हियर 1/some. ध्यान दीजिएगा, लिसन. ऑप्शन 1 and some, here is given the
आर, इट मीन्स आपने देखा होगा जनरली सुनते हैं, जनरली यू कैन सी दिस टाइप द वर्ड, दिस टाइप द लाइन्स आर मैटर इन द सोसाइटी नियर बाय योर फ्रेंडशिप, यू कैन सी व्हाट, लिसन, आर बार्न ग्रेट, कि कुछ लोग जो है जन्म से ही क्या होते हैं, महान पैदा होते हैं। इट मीन्स बड़े घरों में जो है उनका जन्म होता है, ऐसा सुना होगा आपने। तो उसी के लिए हम क्या आएंगे, सम आर, कुछ लोग, राइट, सम आर बार्न, क्या चीज, ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही महान पैदा होते हैं। तो यू कैन राइट हियर सम, द सम इज सटीक वर्ड। चलिए नेक्स्ट, like this you can complete others. Now I am going to tell you relative pronoun, right? A relative pronoun. See here, the main function of relative pronoun is to relate a clause to a noun used earlier, EARLIER। यहां देखिएगा, इसमें बताने की कोशिश ये किया गया है कि द मेन फंक्शन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज रिलेटेड टू क्लास आर टू क्या चीज, नाउन। इसमें ये बताया जाएगा, सपोज एग्जाम्पल में देखेंगे आप कि जैसे दे आर गिवन द टू सेंटेंसेस, राइट, एंड इफ यू यूज द सटीक रिलेटिव प्रोनाउन by which you can connect the both sentences and also that pronoun so are described related, कि उनमें दोनों में क्या संबंध है, किस नाउन से, जस्ट यूजिंग द रिलेटिंग प्रोनाउन बिफोर नाउन, यानी जहां पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा उससे पहले नाउन और प्रोनाउन इज ऑलरेडी गिवन एंड दैट इज यूजिंग ड्यूरिंग द यूजिंग टाइम इट विल आल्सो डिस्क्राइब इट्स रिलेशन, कि उससे उसका संबंध क्या हो रहा है, किससे, earlier noun or pronoun. You can see by the examples here. सीधे हम आते हैं, आप आइए एक्सरसाइज ए पर, उससे आपका सीधे क्लियर होगा। फर्स्ट नंबर, सो मी, देखिए क्या दिया है, सो मी द वे, मी द वे, first sentence, and the second sentence is the way leads to the school, leads to the school, right? यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे करना क्या है कि आपको here is given the first sentence and here is the second sentence. You have to use here the static relative pronoun. Relative pronoun वो सारे जैसे आपके जितने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे आपको दिया गया दैट बीच में जाता है, दैट, व्हिच, whom, whose, 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 why, what, right? These all words are etc कर सकते हैं। These all words are क्या चीज, relative pronoun when these words are used for joining the two sentence। जब ये वर्ड आपके प्रोनाउनों को, इस क्वेश्चन वर्डों को हम दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए यूज किए जाएंगे या करते हैं, इन दैट के दिस टाइप ऑफ प्रोनाउंस
this type the word interrogative this word are called the relative pronoun, right? Just see here, show me the way leads to the school. इसको ज्वाइन करना है. अब हमें ये देखना कि which word will be suitable for this sentence. यहाँ देखिए आपको that दिया गया which. These are used also both person as well as non-living things also. whom किसको, whose किसका, for क्यों, and here what क्या या कैसे या जो भी इसकी मीनिंग होती है, राइट? तो इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट हियर. लिसन अगेन, दैट एंड व्हिच आर यूज्ड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. व्हिच इज आल्सो यूज्ड फॉर सिलेक्शन, चुनाव करने के लिए भी होता है. एंड whom किसको, whose किसका. तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग यू कैन यूज हियर ओनली वन फ्रॉम दिस ऑप्शंस, राइट? तो देखिएगा, शो मी द वे लीड्स टू द क्या जी स्कूल. तो कैसे करेंगे सी हियर, शो मी द वे. या यहाँ पे देखिए वे जो दिया गया है वे रास्ता, नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज. आल्सो हियर इज द ऑप्शन या इंडिकेटिंग या साइन इज सिलेक्शन. देयर आर मोर वे टू रीच एनी प्लेस आर स्कूल बट यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन. तो सिलेक्शन के लिए अभी हमने बताया कि फॉर सिलेक्शन यू कैन यूज व्हिच. तो शो मी द वे व्हिच, WHICH, राइट? व्हिच हो गया. अब यहाँ पे हमें द वे का इस्तेमाल नहीं करना है. रीजन क्या है कि यहाँ पे द वे का हम इसी के बारे में क्या करें, इसके व्हिच के माध्यम से इसका रिलेशन शो करें. वे हमारा क्या है, व्हाट इज वे, वे इज द नाउन. अभी आपको ऊपर बताया जा चुका है कि द मेन फंक्शन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज द क्या चीज, रीड ए क्लास टू द ए नाउन यूज ईयरलियर का मतलब पहले. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो व्हिच दिया है, राइट? जो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं व्हिच, इससे पहले जो है ईयरलियर जो वर्ड दिया है इससे पहले वाला वर्ड, राइट? दैट में बी नाउन और प्रोनाउन, वह नाउन या प्रोनाउन हो सकता है मान लीजिए. तो हियर इज गिवन द क्या चीज, नाउन, वे इज नाउन. तो यह इससे क्या शो कर रहा है, रिलेशन, राइट? तो दिस इज द रीजन दैट व्हिच लीड्स LEADS to the school. Yes beta, tell me. Hello, Rohit Pandey and Rajkumar, Surya Pratap and Anushka. Yes, sir. बेटा ये आपको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सबका आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा. स्पीक एवरीबॉडी. सर समझ में आ रहा है. अच्छा ये बताइए हमने यहाँ पे व्हिच इस्तेमाल क्यों किया, टेल मी. टेल बेटा एनीबॉडी. राजकुमार यादव, आई हैव यूज हियर व्हिच फाइव. Sir. यस. No answering. Listen, I have used here which region. There are given many way. बहुत सारे रास्ते हैं कहाँ जोड़ने के लिए, स्कूल को. The way leads to school, स्कूल से जोड़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं. बट उन रास्तों में से हमें किसी एक को क्या करना है, चुनना है, सेलेक्ट करना है. तो हमने वही बताया है कि व्हिच जो वर्ड दिया गया है व्हिच, ये सिलेक्शन के लिए, चुनाव करने के लिए होता है. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है, कई बार लिविंग थिंग्स के लिए भी हो जाता है, राइट? ये दैट और आपका व्हिच दोनों. लेकिन व्हिच स्पेशली सिलेक्शन के लिए होता है, चुनने के लिए होता है. तो यू हैव टू सेलेक्ट वन वे एंड दिस इज द रीजन दैट आई हैव यूज्ड हियर व्हिच, सिलेक्शन करने के लिए. द वे व्हिच लीड टू द स्कूल, देयरफॉर आई हैव यूज्ड व्हिच, राइट? अगला देखिएगा, नेक्स्ट. नेक्स्ट नंबर, ही इज अ मैन. ध्यान दीजिएगा. सेकेंड नंबर, ही इज अ मैन, फुल स्टॉप. ही इज नेवर सेटिस्फाइड. ही इज नेवर satisfied, राइट? अब इसको करना है सी हियर. इसको कैसे कर सकते हैं, लिसन. ही
इज अ मैन, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसमें कर सकते हैं। हमने आपको पहले बता दिया है कि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो इसमें आएंगे, राइट। यहाँ पे जैसे दे दिया गया हु इज ऑलवेज यूज फॉर पर्सन, हमेशा हु जो है जो की सेंस में, इसकी मीनिंग आती है जो, इस किसके लिए, ओनली फॉर पर्सन। ही इज अ मैन, अब यहाँ पे देखते हैं मैन इज आल्सो पर्सन, यू नो वेरी वेल। तो ही आर यूज हु, ही इज अ मैन हु, अब यहां से क्या हो जाएगा, नेबर, NEBER, नेबर सेटिस्फाइड, राइट, नेबर सेटिस्फाइड। तो यहां पे हमने हु का जो इस्तेमाल कर दिया है, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन, हमने पहले बता दिया। हु इज ऑलवेज सर स्कूल कब खुलेगा? हेलो, यस बेटा, एनीबॉडी इज आस्किंग समथिंग? हेलो बेटा, आर यू हियरिंग मी? यस सर। हाँ बेटा, तो हमने हु का यहाँ पे इस्तेमाल किया, लाइक दिस यू कैन फेल। अब अगला हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, राइट। फ्रॉम योर साइड आई एम गोइंग टू टेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ वुमन, स्कूल कब खुलेगा? दिस इज, once again, this is a woman, ध्यान देंगे आप। her son has gone to the USA, her son has gone to the USA, right, ध्यान दीजिएगा, like this, okay, you have to fill here, this is a woman, her son has gone to the USA, yes, according to you, what is the static option as a relative pronoun? Tell me, क्या हो सकता है? Yes बेटा, anybody? श्वेता यादव and Ananya Singh, Ankita, Surya, या other students, if you know very well, show your face and tell me what is the static answer. बोलिए बेटा, anybody? No, चलिए, don't mind. यहां देखिएगा, this is a woman, her son has gone to USA, आपको सेलेक्ट करना है। This is, listen here, this is a woman, इसकी मीनिंग जरूर निकालिए, then you will eligible to find या fill the static word. This is a woman, यहां पे आपका आएगा whose, right, whose means जिसका, कौन, son, 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 whose son has, right, gone to USA. Beta, are you understanding? Students? Hello? Sir. Beta, nobody is speaking, nobody answering, feedbacking. So I am not understanding why your answer is not coming. Please see and try to find the static word. हमने यहाँ पे आपको लिख रखा है, whose दिया गया, whose, whom, why, जो आपको सूट करता है, you can use according to your sense. It may be right or wrong, but your feedback is compulsory, so that I might also have understand that what you are speaking, what your answer is static, right or wrong. So speak something, feedback. चलिए next number. अगला आंसर दें आप। My uncle is a teacher. Fourth number. My uncle is a, सर SST का क्लास नहीं होगा? चलेगा बेटा, चलेगा, just after this. My uncle is a teacher. He is 60 years old. ध्यान दीजिएगा, he is SIX
ty 60 years 60 years old. Just after this बेटा, अब यहां देखिएगा, my uncle is a teacher, he is 60 years old. इसमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? टेल मी व्हाट इज द सटीक ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? क्या हो सकता है बेटा? नोबडी आंसरिंग. देखिए यहां पे लिखेंगे आप माई अंकल इज अ टीचर, राइट. यहां ध्यान दीजिएगा, ये टीचर जो दिया गया, यू कैन सी हियर ही इज अ पर्सन. जो नाउन देख रहे हैं आप, ही इज अ पर्सन, तो इस पर्सन के अनुसार यहां पे क्या करेंगे? हु. जो है क्या है? हु इज SIXTY 60 years old. Like this you can use here. Listen again. My uncle is a teacher, right? मेरे अंकल क्या है? टीचर है. जो के सेंस में हु इज a 60 years old, जो 60 वर्ष के. तो अकॉर्डिंग टू सेंस यू कैन सेलेक्ट द सटीक वर्ड. चलिए नेक्स्ट. A fox saw some grapes. A fox saw some grapes. Grapes. Full stop. They were hanging high. They were hanging high. Right? You have also select here. अब यहां पे देखेंगे आप, इसमें दिया है कि फॉक्स सा सम ग्रेप्स. एक फॉक्स ने सम ग्रेप्स को क्या किया? देखा, राइट. अंगूर देखा, गुच्छा देखा मान लीजिए. तो यू कैन सी, ये जो आपको चीजें दिखाई दे ग्रेप्स, इसको किस में ले लेंगे? थिंग्स में, वस्तु में हो जाएंगे, राइट. मैटेरियल नाउन हो जाएगा. तो हमने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या लगा देते हैं? बताइए. विच लगाते हैं, विच, राइट. तो यू कैन यूज हियर क्या? विच. तो कैसे करेंगे? A fox saw some grapes which 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 were not they were hanging high, right. तो यहां पे देख सकते हैं which जो दिया गया है, which, this is the use for the non living things. सर एसएसटी क्लास कब चलेगा? Just after this बेटा, next few minutes, just ओवर होने वाला आपका. जस्ट नेक्स्ट नंबर 2 या 3 मिनट और, राइट. जस्ट वेट. The beggar was blind. 6 number. The beggar was blind. We helped him. We helped him, right. अब यहां पे देखिएगा, इसको कैसे बना सकते हैं? The beggar was blind, right. अब यहां पे देखिए, ब्लाइंड जो दिया गया किसके लिए आया हुआ? बेगर के लिए. और बेगर कैसा है? बेगर क्या है? पर्सन है. तो इस वजह से जो है हम क्या कर देंगे यहां पर? हु.